Hello everyone, welcome back. Today we move ahead with our Social Studies lesson 11, and once again this was on demand by the student for their term 1, and it's related to the Indian judiciary, and it's going to be once again very interesting chapter, of course, like all your other chapters, but this part is related to your civics as we did our 8th, 9th, 10th. उस तरह से this chapter also is related to your civics section, and let's see what is it. So judiciary, you all know, related to the different levels of court, that is High Court, Supreme Court, District Court, Lok Adalat, and you have many small courts, and lowest level, that is at the grassroots level in villages, we have Gram Panchayat, right? So Indian judiciary now. We have studied in detail already that we had done in 10th chapter, and we also had taken a lecture on the revision of this lesson 10, in which I think so it had become over clear for you about the three organs of the government, and that was legislative, that is law making, that is parliament who makes the laws, executive जो उसको उसी रूल्स रेगुलेशन लॉज एक्ट्स को एग्जीक्यूट करवाने वाले ग्रुप को हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव. तो इसके बारे में तो हमने डिटेल में पढ़ाई कर ली थी. इन दिस चैप्टर लेट्स स्टडी इन डिटेल अबाउट द थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, और जो थर्ड ऑर्गन था वो था जुडिशरी. और हमने ये भी देखा था कि लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव आर कनेक्टेड. जुडिशरी ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट, बट इट इज़ इंडिपेंडेंट. क्योंकि अगर ये दो सेक्शन में से किसी ने कहीं पे जुडिशरी के साथ अगर कनेक्टेड रहे एज अ ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, अगर ये तीन कनेक्टेड होते तो मे बी एनी वन ऑफ दिस और मे बी बोथ may sometime bring judiciary under pressure while giving the judgment. तो जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा है, दो इज अ पार्ट ऑफ द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. Though legislative and executive also are the two organs of the government, same government, but judiciary is independent, a statutory, impartial organ of the government. The Constitution of India provides, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है कि हमारी जो जुडिशरी होगी वो सिस्टमेटिक होगी, ऑर्गेनाइज्ड होगी, यूनिफॉर्म सिस्टम होगी. तो all our judicial proceedings, our judicial system should be perfect, systematic, organized and uniform, that is same all over our country. कहीं पे हाई कोर्ट में कुछ और चल रहा है, वहाँ की पैटर्न अलग है जजमेंट की, किसी और स्टेट में अलग पैटर्न है, या किसी के केस की सुनवाई किसी और तरीके से हो रही है किसी स्टेट में. It's like no partiality, no unorganized form, no non-systematic form. Everything is perfect from top to bottom in judiciary all over the country. And Indian judiciary system is in the form of pyramid hierarchy. अब यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसको मैंने ईजी फॉर्म में समझाया भी है. हायरार्की, दैट इज़ रैंकिंग. तो ये हमारी रैंकिंग हुई लोवेस्ट, फिर उससे ऊपर, फिर थोड़ा हाई एंड द हाईएस्ट, राइट. सो दिस इज द हायरार्की फॉर्म इन अ ट्रायंगुलर पिरामिडिकल स्ट्रक्चर. वी हैव एस्टैब्लिश्ड अ यूनिफॉर्म जुडिशरी, मतलब ऑल ओवर द कंट्री जुडिशरी सेम होगी. एंड इन इट एट द टॉप मोस्ट लेवल देयर इज सुप्रीम कोर्ट. सबसे ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट. इट इज़ कॉल्ड एपेक्स कोर्ट. एंड देन द मिडिल वी हैव हाई कोर्ट. And then we have district court, taluka court. Lowest level we have trial court and special court. Apart from this, there are trial courts and tribunals which are established to provide and serve various objectives. अब jurisdiction मतलब क्या? Official power to make some lawful or legal decision judgment. Country की legal decision लेना, judgment देना legally, ये पावर जो ऑफिशियल पावर जो रहता है उसको हम कहते हैं जुरिस्डिक्शन.
एंड ट्रिब्यूनल मतलब एक ग्रुप. जैसे 8th स्टैंडर्ड में भी तुम्हें ये पार्ट था कि वाटर ट्रिब्यूनल, और 10th चैप्टर में भी हमने किया था इसके रिलेटेड. तो ट्रिब्यूनल मतलब ग्रुप ऑफ पीपल हु आर एक्सपर्ट रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. तो अगर एजुकेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो एजुकेशन रिलेटेड ट्रिब्यूनल बिठाया जाएगा. अब उस ट्रिब्यूनल में वही लोग होंगे जिनको उस सब्जेक्ट के बारे में एक्सपर्टाइज है, राइट. दे कैन सॉल्व द प्रॉब्लम. तो ट्रिब्यूनल, a body that is a group of people established to settle or to solve certain types of problems or disputes. ठीक है. Next, important, your short note, but it could be your for 4 marker. Importance of judiciary, और थोड़े यहाँ पे तुम्हारे मीनिंग्स भी लिखे हैं, so that when you go through this chapter, बहुत बच्चे हैं जो टेक्स्ट बुक फॉलो कर रहे हैं ठीक से. येस, एंड दे आर इन टच विथ मी, दे गिव मी अ कॉल कि भाई हम टेक्स्ट बुक भी रीड कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक में ये पर्टिकुलर लाइन में ये पर्टिकुलर वर्ड नहीं समझ में आ रहा, तो फ़ोन पे वो डिस्कशन होती है हमारी. सो दैट इज़ ऑन द पर्सनल लेवल. येस, लाइक अ प्राइवेट ट्यूशन फॉर यू, अ सेपरेट टाइम विल बी प्रोवाइडेड टू यू. एंड तुम अपने एक डायरी में नोट डाउन कर लो जितने भी डाउट्स हैं, एंड टेक टाइम. And we can sit and solve. It could be at night also after 8 o'clock, 9 o'clock, and we can fix our time, personal, like which is set for you, comfortable for you and me, and we can solve your doubt video call पे या phone पे, जैसे तुम चाहो, right? But that time will be personally given only to you, right? तो कलेक्ट करना शुरू कर दो एग्ज़ाम के लिए अपने डाउट्स. एंड येस, आई हैड ऑलरेडी सेंट होमवर्क ऑल्सो फॉर यू, तो वो भी सॉल्व करके भेज देना है तुम्हें. एंड देन द आंसर शीट विल बी प्रोवाइडेड टू यू सो दैट यू कैन गो थ्रू इट फॉर योर एग्जाम. रेडी मटेरियल भेजा जाएगा, वो पूरे क्वेश्चन पेपर की आंसर शीट भेजी जाएगी. बट बिफोर दैट यू विल हैव टू सेंड मी द आंसर शीट सॉल्व, राइट. एंड व्हाट्सएप कर देना पर्सनली, तो तुम्हें पर्सनली वो आंसर शीट भेज दूंगी मैं. सो नाउ कम बैक टू इम्पोर्टेंस ऑफ जुडिशियरी. अ न्यूट्रल एंड इम्पार्शियल जुडिशियरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द फेडरल सिस्टम. मतलब हमारी जुडिशियरी एकदम न्यूट्रल होनी चाहिए. इम्पार्शियल आई टोल्ड यू जस्ट नाउ. अब फेडरल सिस्टम मतलब क्या, तो यहाँ पे देखो दिया है. फेडरल सिस्टम मतलब पॉलिटिकल ऑथोरिटीज डिवाइडेड इनटू 2 ऑटोनॉमस सेट ऑफ गवर्नमेंट, 2 individual set of government, one country level, other sub-national level, that is state level पे, both of which operate directly upon the people. तो हम अगर मैं सिंपल वर्ड में समझाऊँ व्हाट इज़ फेडरल सिस्टम, तो हमने ये भी आगे किया था हमारे 9-10 चैप्टर में कि हमारे यहाँ एक गवर्नमेंट नहीं है. वी आर 2 सेट ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज़ यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट. तो यूनियन गवर्नमेंट अपने कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशन पास कर रही है जो पूरे इंडिया के हर एक लोगों को फॉलो करना है. आफ्टर दैट अब सारे काम तो यूनियन गवर्नमेंट हैंडल नहीं करेगी टू डेवलप द कंट्री. तो फिर उन्होंने कंट्री को डिवाइड कर दिया स्टेट्स. अब हर एक स्टेट को एक एक गवर्नमेंट दे दी. अब ये हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के लिए कुछ एक्स्ट्रा कर रही है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इट्स ओन स्टेट सिटीजन, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इट्स ओन स्टेट एज अ होल. तो कॉमन हमारे यूनियन गवर्नमेंट के तो रूल्स कॉमन होंगे फॉर द होल कंट्री, लेकिन हर एक स्टेट के जो एक्स्ट्रा एफर्ट होंगे टू डेवलप इट्स ओन स्टेट, तो उसके खुद का अलग से रूल्स भी होंगे एक्स्ट्रा में, राइट, टू प्रोवाइड समथिंग एक्स्ट्रा टू इट्स पीपल. अब यहाँ पे दूसरा स्टेट फाइट नहीं करेगा कि हमें ये नहीं मिल रहा, क्योंकि ये हर एक स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि एक्स्ट्रा में हमें क्या देना है हमारे लोगों को फॉर आर स्टेट टू डेवलप. इसलिए तुम देखोगे कि गुजरात में कहीं पे कुछ डेवलपमेंट है तो दूसरे और स्टेट लाइक BRTS all the state don't have, right? Okay, all the cities also don't have. Again, if you go to see metro train, तो हर एक स्टेट के पास नहीं है, हर एक सिटी के पास नहीं है.
local train like in Bombay. We don't have. So there are many reasons behind it. लेकिन जो हमारे पास है वो शायद किसी और स्टेट या सिटी के पास नहीं है. So it depends upon that particular state government how to develop his own state. Education wise, social, politics, economic wise, infrastructure, वो हर एक स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी. कॉमन तो है यूनियन गवर्नमेंट, बट फिर हर एक स्टेट गवर्नमेंट भी अपना अपना अलग से सोचेगी. तो हुए दो गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड फेडरल सिस्टम. तो हमारे यहाँ एक इम्पार्शियल जुडिशरी बहुत इम्पॉर्टेंट है, न्यूट्रल जुडिशरी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जुडिशरी कनेक्टेड है. ग्राम पंचायत टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट, अब यहाँ पे सब कनेक्टेड है. इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट ऑफ से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यू कैन गो टू हाई कोर्ट. हाई कोर्ट की जजमेंट से खुश नहीं हो तो यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट. मतलब ऑल आर इंटरकनेक्टेड. गवर्नमेंट दो अलग है लेकिन हमारी जुडिशरी कनेक्टेड है, राइट. वी आर ऑल इंडियन यूनियन के अंडर रह रहे हैं. सो अ न्यूट्रल एंड इम्पार्शियल जुडिशरी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फेडरल सिस्टम for protection and preservation of the rights of Indian citizen and to solve any incongruity between central and state or between one state and other state regarding the division of workload. Incongruity मतलब is when things don't match as they are expected to. जैसे तुम्हारे मैथ्स में congruence means equal, incongruity not equal to, right. तो जब यू कैन से कि बहुत ही एक इम्पार्शलिटी वाली जुडिशरी चाहिए हमें हमारे फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में, टू प्रोटेक्ट सिटीजन, टू प्रिजर्व द राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन एंड टू सॉल्व एनी इम्बैलेंस. यू कैन राइट वेरी सिंपल वर्ड इम्बैलेंस. अगर इम्बैलेंस आ जाए बिटवीन द थॉट्स ऑफ, बिटवीन द वर्किंग ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट or between one state and other state, if there is any problem related to division of workload, तो यहाँ पे हमें impartial judiciary की बहुत ज़रूरत पड़ेगी. Judiciary is very important organ as to interpret. Interpret means to explain, to interpret constitutionality of any provision of any law. तो judiciary सबसे important organ है जो हमें समझाता है about the constitution, about the provision, so that the supremacy of the constitution exists. और constitution की जो supremacy है, जो importance है, वो हमेशा exist रहे, it prevails. In order that the lawmakers or executors do not break any constitutional limitation, we require a country independent, firm, that is strong, impartial, fearless judiciary, which is the foundation of democracy. हमारी democracy का base क्या है? इंडिपेंडेंट, फियरलेस, इम्पार्शियल जुडिशरी. और हमारे कोई भी लॉ मेकर्स या एग्जीक्यूटिव्स कॉन्स्टिट्यूशन का इंसल्ट ना करें, कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रेक ना करें, कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स एंड रेगुलेशन जो लिखे गए वो उसके अगेंस्ट ना जाए. इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक फियरलेस जुडिशरी जो लॉ मेकर्स को भी सज़ा दे अगर वो गलत है, और एग्जीक्यूटिव्स भी अगर गलत है. तो जुडिशरी इतनी फियरलेस और इम्पार्शियल होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट होनी चाहिए कि वो एग्जीक्यूटिव्स को भी सज़ा दे पाए, राइट. इसीलिए ये जुडिशरी हमारी कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री का बेस है, फाउंडेशन है. ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सी द जुडिशरी प्रोसेस. इन दिस प्रोसेस देयर इज नो फ्लॉ और डिले एंड द सिटीजन गेट क्विक, चीप एंड इक्वल जस्टिस. अब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का मेन गोल क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है? कि हमारी जुडिशरी इतनी फियरलेस और स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, इम्पार्शियल होनी चाहिए कि कोई उसमें फ्लॉ नहीं होना चाहिए. फ्लॉ मतलब कोई खामियां नहीं होनी चाहिए हमारी जुडिशरी प्रोसेस में, कोई डिले नहीं होना चाहिए, और हर एक इंडियन सिटीजन को एक क्विक, चीप एंड इक्वल जस्टिस मिले. इन द प्रेजेंस ऑफ अलर्ट लेजिस्लेचर. अलर्ट मतलब अवेयर, जो हमेशा जागता हो, सो ना जाए. मतलब अवेयर मतलब टू बी वेरी मच अवेयर फ्रॉम योर, right. So in the presence of aware lawmakers and executors, judiciary will always remain active. अगर हमारे lawmakers एकदम परफेक्ट हो, अलर्ट हो, अवेयर हो,
तो जुडिशरी कुछ गलत नहीं कर पाएगी. एग्जीक्यूटिव्स अगर अवेयर हो, जुडिशरी एक्टिव ही रहेगी. बट मैनी अ टाइम ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव इनएक्टिवनेस एंड इररिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव and an authoritativeness of lawmakers, impartial, cognizant, independent and fearless judiciary has shown judicial inactiveness. तो लॉ मेकर्स और एग्जीक्यूटिव्स कई बार उनके दबाव में आके, उनके ऑथोरिटेटिव नेचर के हिसाब से, या कभी वो इररिस्पॉन्सिबल इतने हो जाते हैं कि हमारी जुडिशरी भी इनएक्टिव हो गई थी कई बार. कॉग्निजेंट मतलब सी वंस अगेन in the presence of alert lawmakers and executives, judiciary तो हमेशा एक्टिव रहेगी. But many a times, due to this inactiveness and irresponsible executives and lawmakers, right, and authoritativeness of legislature, impartial, cognizant मतलब aware, independent and fearless judiciary has shown judicial inactiveness. हमारी जुडिशरी इतनी इंडिपेंडेंट, स्ट्रॉन्ग, कॉग्निजेंट मतलब अवेयर, कॉन्शियस, फियरलेस है, फिर भी कई बार वो इनएक्टिव साबित हुई है. राइट. एंड लेट्स सी नाउ अबाउट एपेक्स कोड. सो एज वी मूव अहेड वी सी ओवर हियर रिलेटेड टू द एपेक्स कोड. नाउ एपेक्स कोड इज कॉल्ड ऑल्सो एज अ सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट इज एट द एपेक्स ऑफ इंडियन जुडिशरी. जैसे हमने पहले भी देखा था दैट देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट. देयर विल बी द ग्राम पंचायत, रूट लेवल, विलेज, देन उससे ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन देयर इज हाई कोर्ट, देन देयर इज सुप्रीम कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, सबसे टॉप पे मतलब एपेक्स. एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज़ द टॉप मोस्ट जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से टॉप मोस्ट जुडिशरी ऑर्गेनाइजेशन है सुप्रीम कोर्ट. इज लोकेटेड एट दिल्ली. ऑल द सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स ऑफ इंडिया हैव टू वर्क अंडर द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट. हमने पहले भी देखा था कि जुरिसडिक्शन मतलब क्या, द पावर टू गिव जुडिशियल लाइक जजमेंट एंड ऑल, ऑफिशियल जजमेंट. तो ये पावर किसके हाथ में है? All civil and criminal courts of India will have to work under the power of Supreme Court. And Supreme Court consists of one chief judge, 28 additional judges, right? तो Supreme Court में एक chief justice होंगे, 28 additional judges होंगे. The chief justice of Supreme Court is appointed by dash, that is by President of India. So learn it as all your objectives and the detailed answer will become easy for you. वाइस वर्सा, कईयों के लिए डिटेल आंसर लर्न करना इजी हो जाएगा, तो फिर अपने आप उसके अंदर के 1 मार्कर तो इजी हो ही जाएंगे, बाय हार्ट हो जाएंगे. सो वंस अगेन, हाईएस्ट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट एज पर इंडियन जुडिशरी. राइट. एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉप मोस्ट जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन इज सुप्रीम कोर्ट, लोकेटेड एट दिल्ली. ऑल सिविल क्रिमिनल कोर्ट्स ऑफ इंडिया वर्क्स अंडर द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट. 1 चीफ जज इन सुप्रीम कोर्ट एंड 28 एडिशनल जजेस. ठीक है. The chief judge of the Supreme Court appointed by President of India. Number of judges in the Supreme Court decided by Parliament. तो चीफ जज को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. कितने जजेस रहेंगे सुप्रीम कोर्ट में, कौन रहेंगे वो जजेस सुप्रीम कोर्ट में, वो कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट. बट इफ द प्रेसिडेंट फील्स दैट वर्कलोड ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज इंक्रीज्ड, देन प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एडिशनल एडहॉक जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट एज पर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. प्रोविजन मतलब ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है, ये पॉइंट प्रोवाइड किया गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का वर्कलोड बढ़ जाए तो प्रेसिडेंट कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस फॉर दैट शॉर्ट टाइम पीरियड इन सुप्रीम कोर्ट. एडिशनल एडहॉक जजेस, एडहॉक जजेस मतलब दे कैन अपॉइंट एडिशनल जजेस फॉर दैट शॉर्ट टाइम पीरियड. जब वर्कलोड ठीक हो जाए, काम हो जाए सब, तो वहाँ पे नॉर्मल 1 मेन जज, 28 अदर जजेस विल बी देयर इन सुप्रीम कोर्ट. लेकिन 28 से ऊपर एक्स्ट्रा कब जाएंगे? अगर प्रेसिडेंट को लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का वर्कलोड बढ़ रहा है, राइट, तो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा जजेस को वो सिलेक्ट करेंगे या अपॉइंट करेंगे. एंड ऑल दिस थिंग्स आर प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ये रूल्स लिखे गए हैं.
जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी. अब सीनियोरिटी के हिसाब से जजेस को अपॉइंट किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में. एक्सेप्ट फॉर द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑल अदर जजेस आर अपॉइंटेड आफ्टर कंसल्टिंग चीफ जस्टिस एज वेल एज अदर सीनियर जजेस. तो चीफ जस्टिस के अलावा बाकी सब जजेस को अपॉइंट किया जाएगा इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस एंड अदर सीनियर जजेस. नाउ क्वालिफिकेशन क्या है? अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शुड बी व्हाट? योर. अब ये मैंने दो मीनिंग्स लिखे हैं. एडहॉक जज मतलब सिलेक्टेड अपॉइंटेड जज. जूरिस्ट मतलब एन एक्सपर्ट इन समथिंग और अ राइटर but related to law, right? The one has the power to deal in law making, to deal with judiciary. तो चलो आगे बढ़ते हैं. Qualification of this Supreme Court judge. तो a person who is appointed as a judge of the Supreme Court should be Indian citizen. कुछ याद आ रहा हो तो 10th chapter में कुछ ऐसा ही किया था हमने. But in that we had done about lawmakers and executors qualification and all, and Lok Sabha and Rajya Sabha and all. Here we are dealing with the third organ, judiciary. तो सुप्रीम कोर्ट में अगर जज को अपॉइंट करना है तो ही शुड बी इंडियन सिटीजन. ही शुड हैव प्रोवाइडेड अ सर्विस ऑफ एटलीस्ट 5 years एज अ जज इन एनी ऑफ द हाई कोर्ट. देखो इंडियन सिटीजन तो उसको होना है, ये कॉमन. सेकेंड, फिर और वाले देख लेना ठीक से. सेकेंड होना चाहिए या थर्ड या फोर्थ. तो फर्स्ट कंपलसरी, फिफ्थ कंपलसरी और ये 3 में से एक कंपलसरी, राइट? लिखने हैं आंसर में ऑल 5. तो फर्स्ट इंडियन सिटीजन. सेकेंड 5 साल एज अ जज का उसने सर्विस प्रोवाइड किया हुआ होना चाहिए इन एनी ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ अ कंट्री. या फिर he should have experience of at least 10 years as an advocate in any of the high court, right? या तो 5 साल किसी हाई कोर्ट में एज अ जज सर्विस दी होनी चाहिए, या फिर 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ लॉयर इन एनी ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ अ कंट्री, या फिर ही शुड बी अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड जज. डिस्टिंग्विश मतलब सबसे कुछ अलग काम किया हुआ होना चाहिए, और अ फेमस ज्यूरिस्ट इन द आई ऑफ प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट की नज़र में वो एक बहुत ही अलग कुछ बेहतरीन जज होना चाहिए. देन ओनली ही कैन बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. एंड इम्पॉर्टेंट, ही शुड बी नॉट मोर देन 65 years ऑफ एज. सो लेट्स सी. रिटायरमेंट एज इसका मतलब क्या हुआ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस? 65. टाइम पीरियड, रिटायरमेंट इज 65 years. However, change in the age of retirement can be made by the parliament through framing a law. अब ये 65 का 60 भी कर सकते हैं, 70 भी कर सकते हैं, 75 भी कर सकते हैं, 63 भी कर सकते हैं. कम ज़्यादा करने का हक किसके पास है? by passing a law, right? And that is by parliament. They cannot carry the practice of law in any of the Indian court. हाँ, अगर 65 फाइनल एज हो गई है रिटायरमेंट की तो उसके बाद वो काम नहीं करेंगे किसी भी कोर्ट में. हाँ, लेकिन अपनी फ्री सर्विस देंगे. बट दे कैन प्रोवाइड देयर सर्विसेज इन ग्रुप्स टू दोज कमिटीज, टू दोज ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट इनटू अनकॉमन सिचुएशन और इवेंट. कोई बहुत ही बड़ा सीरियस मामला कंट्री में आ जाए जिसके ऊपर केस चल रहा है और कमिटीज़ कहीं पे उनको किसी का सपोर्ट चाहिए, कोई बहुत ही एक्सपीरियंस्ड जजेस का, तो यहाँ पे ये रिटायर्ड जजेस अपने बेहतरीन सलाह मशवरा दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं. दे कैन गिव देयर प्रेशियस टाइम ओवर योर, दे कैन गिव देयर सजेशंस इन दिस अनकॉमन सिचुएशन और इवेंट्स. They can provide their free services to these committees. If incapable to carry out their duties before the time of retirement, then under such circumstances they can resign willingly. अगर ड्यूटी पे हैं, अभी रिटायरमेंट एज नहीं आई, लेकिन फिर भी वो अगर अपने हेल्थ के हिसाब से या किसी और रीज़न से वो अपना काम नहीं कर पाते हैं बराबर, they are incapable to carry out their duties, तो फिर वो विलिंगली रिज़ाइन कर सकते हैं फ्रॉम देयर पोस्ट
by tendering, that is by providing written resignation to president. But judges can be removed from their post and power if they are found to be guilty of incapable misconduct और inefficiency. तो खुद तो रिटायर हो सकते हैं टाइम के पहले, लेकिन टाइम के पहले निकाले भी जा सकते हैं अगर वो इनकेपेबल प्रूव हुए. प्रूव करना चाहिए, या उनका बिहेवियर ठीक ना हो या वो एफिशिएंट ना हो. दिस रिमूवल इज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. और ऐसे नहीं कहेंगे कि भैया कल से आना मत, राइट? यू कांट से दैट. जैसे हम घर में हमारे यहाँ तो काम करने आते उनको कह देते ना भैया कल से मत आना. इट्स नॉट दैट वे. Here there is a proper procedure to be followed which is already mentioned in the constitution. So this removal is in accordance, that is in according to that is by following the procedure, that is it is in accordance with the things that are written down or provided in the constitution, and then it is carried out through the impeachment process in parliament. प्रोसीजर फॉर इट इज़ एज फॉलोज. अब प्रोसीजर क्या है उनको निकालने की? अगर प्रूव हुए कि भाई ये गलत है जज, ही इज़ नॉट केपेबल ऑफ डूइंग द वर्क, ही इज़ नॉट, हिज बिहेवियर वॉज वेरी इम्प्रॉपर, तो फिर एक प्रोसीजर है जिसको हम कहते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस. एक मोशन पास होता है पार्लियामेंट में. तो लेट्स सी व्हाट इज इट दिस प्रोसीजर. एवरी हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैज़ टू सबमिट अ मेमोरेंडम. मेमोरेंडम मतलब यहाँ पे मैं दिया है a note, written note, legal note or letter or email. Every house, that is Lok Sabha, Rajya Sabha of Parliament, will have to submit a written note having majority support to the president of the total number of members. तो majority support होना चाहिए against that particular judge, and at least 2/3 number of the members present in the respective session. Session मतलब meeting. तो उस पर्टिकुलर मीटिंग में एटलीस्ट 2/3 नंबर ऑफ मेंबर्स को प्रेजेंट होना चाहिए और उनकी हाँ होनी चाहिए कि भाई ये जज को निकाल दो. बेस्ड ऑन द प्रेजेंटेशन बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, जज कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट. पार्लियामेंट विल लुक इनटू द प्रेजेंटेशन, दैट इज मॉनिटर्स द प्रेजेंटेशन ऑफ दिस लेटर, दैट इज मेमोरेंडम रिगार्डिंग द मिसबिहेवियर ऑफ द जज. फिर पार्लियामेंट दे विल गो थ्रू ऑल दिस लेटर्स और emails about written down about the misbehavior of the judge and the conducting of the investigation as well as conducting of proof for the same. और पार्लियामेंट ये भी मॉनिटर करेगी या चेक करेगी, सिर्फ लेटर्स या ईमेल चेक नहीं करेगी अबाउट द मिसबिहेवियर ऑफ द जज, उसके साथ साथ वो इन्वेस्टिगेशन भी कैरी आउट करेगी. देखेगी कि जो प्रूफ जो पेश किए गए वो प्रूफ बराबर है या नहीं. कंसर्न जज इज गिवन द अपॉर्चुनिटी टू फाइट फॉर टू सेव हिमसेल्फ, that is to present his narration in his self protection or defense in the parliament. अब खुद को बचाने के लिए अगर उनको कुछ नरेशन करना है, कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं. जजेस को, कंसर्न जज को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ सीक्रेसी. अब यहाँ पे हु विल बी इन चार्ज ऑफ द टेकिंग द ओथ ऑफ सीक्रेसी एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन? प्रेसिडेंट. टू द जजेस हु आर अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट. अब जब भी कोई जजेस अपॉइंट होते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए तो वो जो ओथ लेते हैं वो कौन ध्यान रखेगा? एडमिनिस्टर कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट. ही इज इन चार्ज ऑफ दैट. बिफोर टेकिंग द चार्ज ऑफ द पोस्ट, जजेस आर रिक्वायर्ड टू टेक द ओथ बोथ ओरली एज वेल एज दे हैव टू साइन द प्लेज. प्लेज मतलब ऐसा कहता है यू टेक द प्रॉमिस, यू गिव द प्रॉमिस टू सर्व द कंट्री ऑनेस्टली, राइट? तो दैट इज अ प्लेज, एक प्रॉमिस. तो ये ओथ, ये जो प्रॉमिस जो जजेस लेते हैं वो ओरली भी लेते हैं और साइन भी करते हैं. ये किसके हाथ में रहता है पावर दैट दे डू दिस थिंग एंड हु एडमिनिस्टर्स ऑल दिस थिंग्स? प्रेसिडेंट, राइट? नाउ नेक्स्ट, पावर एंड jurisdiction of Supreme Court. Supreme Court of India possesses more power and has vast jurisdiction, that is power, in comparison to any other country of the world. सबसे मैक्सिमम पावर किसके हाथ में रहेंगे जुडिशियरी रिलेटेड? सुप्रीम कोर्ट. वर्ल्ड कंपैरिजन में दिस पावर कैन बी डिवाइडेड इनटू ओरिजिनल पावर, एपेलेट पावर, दैट इज अपील मेकिंग एंड एडवाइजरी. तो जुरिसडिक्शन मतलब पावर. सो फर्स्ट इज ओरिजिनल पावर. व्हेन अ कोर्ट हैज अ पावर टू डायरेक्टली गिव जजमेंट आफ्टर हियरिंग अ केस, इट इज कॉल्ड ओरिजिनल. मतलब जजमेंट जो केस है वो सुन लिया कोर्ट में, फिर जज ने अपनी जजमेंट दे दी आफ्टर हियरिंग द केस,
इस पावर को जो जज के पास है टू गिव द जजमेंट आफ्टर हियरिंग द केस डायरेक्टली इज कॉल्ड ओरिजिनल पावर. सुप्रीम कोर्ट हैज़ अ पावर टू मेक डिसीजन रिगार्डिंग द केस विथ नो अदर कोर्ट हैज़. अब कई केस ऐसे होते हैं जहाँ पे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर रहेंगे टू गिव द जजमेंट, और कोई कोर्ट के पास ये पावर नहीं रहेंगे. अंडर दिस पावर फॉलोइंग पार्टीज शुड बी इन्वॉल्व्ड, राइट, हुज कॉन्फ्लिक्ट्स आर सॉल्व्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट. अब यहाँ पे वो पार्टीज इन्वॉल्व हैं जिनके बीच में डिस्प्यूट्स हैं, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ही सॉल्व करेगी प्रॉब्लम, और कोई कोर्ट, नो अदर कोर्ट हैज़ अ पावर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सो लेट्स सी व्हिच आर दिस प्रॉब्लम. तो पहला, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट. मतलब अब देखो, ऑन दिस वन हैंड यू हैव सुप्रीम कोर्ट फाइट कर रही है किसके लिए, बिटवीन हमारी यूनियन, सॉरी 1 मिनट, बिटवीन आ यूनियन गवर्नमेंट एंड वन स्टेट गवर्नमेंट, वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट. तो इन दो के बीच में अगर लड़ाई झगड़े डिशम डिशम हो रहा है तो यहाँ पे कौन सॉल्व करेगा, सुप्रीम कोर्ट. तो ये फर्स्ट केस हुआ. सेकेंड, इट हैज़ द पावर ऑफ सॉल्विंग और रिजॉल्विंग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. अब दो गवर्नमेंट, एक तो कंट्री गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में खिटपिट हो गई तो सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगी प्रॉब्लम. अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया या लड़ाई झगड़े हुए बिटवीन वन स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर स्टेट गवर्नमेंट, अब यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ पे एक स्टेट लड़ाई कर रही है विथ अनदर स्टेट, राइट. अब यहाँ पे ये दोनों की लड़ाई हो रही है तो यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगी, राइट. तो फर्स्ट है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट लड़ाई कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट विल सॉल्व. सेकेंड केस, स्टेट एंड स्टेट, तो भी सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगी यहाँ पे प्रॉब्लम, और कोई कोर्ट के पास ये पावर नहीं है. देन नेक्स्ट, इट हैज़ कंप्लीट पावर टू गिव जजमेंट रिगार्डिंग फाइट और क्वारल बिटवीन स्टेट्स. एक स्टेट है एक बाजू, दूसरी बाजू बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो ये बेचारा अकेला पड़ गया है. यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स हैं, अब इन दोनों के बीच में भी जो फाइट हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगी. तो वंस अगेन यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट फाइट कर रहे हैं. सेकेंड, स्टेट एंड स्टेट या स्टेट्स एंड स्टेट्स, राइट, तो भी सुप्रीम कोर्ट केस हैंडल करेगी. अब एक स्टेट है एक बाजू और दूसरी बाजू बहुत सारे स्टेट्स हैं, इन दोनों के बीच में लड़ाई, तो भी सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगी प्रॉब्लम. फोर्थ, सुप्रीम कोर्ट हैज़ अ राइट टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड गिव जजमेंट कंसर्निंग टू एनी सेट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी. अगर यूनियन गवर्नमेंट में किसी को भी या कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट देंगे. फिफ्थ, इट हैज़ द पावर टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व आवर राइट्स ऑफ आर इंडियन सिटीजन. हमारे सारे 6 राइट को कौन प्रिजर्व कर रहा है, कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट. इफ यू आर नॉट गेटिंग योर राइट यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली. मोर सुप्रीम कोर्ट इज गिवन द पावर टू इशू habeas corpus mandamus or order of prohibition. So now let's see what do you mean by habeas corpus or order of prohibition, right? But before that, let's complete this small part. It is not in the jurisdiction of Supreme Court to settle dispute related to water problem between states, right? या states. A separate water tribunal gives judgment. अब छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती हैं रिलेटेड टू क्लॉथ या डिपार्टमेंट या एजुकेशन डिपार्टमेंट या वाटर डिपार्टमेंट, तो ये सारे फिर अभी जो हमने वर्ड किया था ट्रिब्यूनल, एक पर्टिकुलर एक्सपर्ट की टीम होगी उस सब्जेक्ट
के रिलेटेड, वो सॉल्व करेंगे ये प्रॉब्लम. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इंटरफियर नहीं करेगी. एंड देन इट कैनॉट बी चैलेंज. द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज फाइनल. सो सेपरेट वाटर ट्रिब्यूनल गिव्स जजमेंट. अब जब भी सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देती तो वो फाइनल होगा. नाउ यू कांट गो टू एनी द कोर्ट. इट कैनॉट बी चैलेंज एनीवेयर. दे हैव टू बी रिस्पेक्टेड बाय ऑल ओवर द country citizen, right? So let's see what is this term habeas corpus mandamus or order of prohibition. So as I told you just now, that what do you mean by habeas corpus, right? Now let's see. Habeas corpus, that is related to that is a writ. Writ matlab something in writing. Legal writing. Writ of habeas corpus, which actually means to produce the body, is a court order demanding that a public official should deliver an imprisoned individual to the court and show proper reasons for that person imprisonment, that is detention. तो once again, habeas corpus मतलब कि उस पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग को प्रोड्यूस करना है, मतलब पेश करना है कोर्ट में जज के सामने. तो ये एक रिटन लेटर है, लीगल लेटर है विद एंड इट्स अ कोर्ट ऑर्डर. हेबियस कॉर्पस मीन्स इट्स अ कोर्ट ऑर्डर विद डिमांड्स द पब्लिक ऑफिसर कि जो इम्प्रिजन इंडिविजुअल है उसको कोर्ट में पेश किया जाए विद प्रॉपर रीजंस for his imprisonment, right? So that was what we did over here, right? That fifth one, it has a power to protect the fundamental rights, preserve the fundamental rights of Indian citizen. Moreover, it is also given the power to issue this order of prohibition. Now it is this also we did कि सुप्रीम कोर्ट छोटे मोटे केस नहीं लड़ेगी कि दो स्टेट पानी के लिए लड़ रहे हैं या कोई स्मॉल मैटर्स के ऊपर लड़ाई हो रही है, वहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व नहीं होगी. सेकेंड इज एपलेट. एपलेट आई ऑलरेडी टोल्ड यू जस्ट नाउ, अपील करना, राइट? द राइट ऑफ द कोर्ट टू चेंज द डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट. मतलब कि अगर लोअर कोर्ट में कोई सेटिस्फाइड नहीं है, लाइक इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यू कैन गो टू हाई कोर्ट. हाई कोर्ट के डिसीजन से खुश ना हो तो तुम यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट. अब सुप्रीम कोर्ट फाइनल हो जाएगा. यू कैन से ना अभी लेट मी गो बैक टू हाई कोर्ट. यू कैन गो इन रिवर्स. Supreme Court decision final. So appellate jurisdiction, 3 types of appeal can be made. Appeal मतलब तुम request कर सकते हो in the Supreme Court under this particular type of jurisdiction. Case of constitutional interpretation. Constitutional interpretation मतलब related to constitution अगर कोई case आ जाए तो अपील कर सकते हो. Second, appeal against civil cases. Third is appeal against criminal cases. So let's see the first one. Any person can approach the Supreme Court against the judgment, order or writ given by the High Court. High Court ने कोई भी जजमेंट दी हो या ऑर्डर दिया हो या राइटिंग में दिया हो लीगली, तो उसके अगेंस्ट हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, अगेंस्ट द हाई कोर्ट. और ऑन एनी केस ओनली इफ अ सर्टिफिकेट इज गिवन बाय हाई कोर्ट अलॉन्ग विद द जजमेंट that the case involves any matter related to the constitution which has been falsely understood or contains any important question of law, and as the petitioner मतलब you or me can appeal in the Supreme Court for the same. अगर कोई ऐसा सर्टिफिकेट हाई कोर्ट इशू कर दे, कोई ऐसा जजमेंट which we are not accepting it, then we can appeal in the Supreme Court for the same. If any such certificate is not given by the High Court, if the petitioner approaches Supreme Court, then in such case, if the Supreme Court finds that any constitutional right is violated, then it can accept the petitioner's appeal. अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जजमेंट पास नहीं हुई है हाई कोर्ट में, if the petitioner is not happy with the judgment, he can appear in the Supreme Court. But in any of the circumstances, only the petitioner who is a party, that is a part of in the working of the High Court, can approach the Supreme Court. लेकिन कोई भी circumstance में petitioner उस
पार्ट का हिस्सा होना चाहिए। जो केस चल रहा है उसमें वो पेटिशनर का हिस्सा होना चाहिए। ही शुड बी अ पार्ट ऑफ दैट केस, देन ही कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट ओनली अंडर द रीजन दैट अ फॉल्स जजमेंट इज गिवन बाय हाई कोर्ट और एनी अदर कोर्ट। लेकिन उसे प्रूव करना है कि भाई ये जो जजमेंट दी है वो ठीक नहीं है, सो वी मेक एन अपील इन द सुप्रीम कोर्ट कि केस फिर से सुनवाई होनी चाहिए केस की सुप्रीम कोर्ट में। सो पेटिशनर इज द पर्सन हु इज आस्किंग फॉर action from the court of law, or it is a written request, the one who makes in the supreme court. हाई कोर्ट में नाखुश है तो तुम सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डालोगे, और पिटीशन डालने वाले को, रिक्वेस्ट करने वाले को हम कहेंगे पिटीशनर। और अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नाखुश है तो तुम हाई कोर्ट में पिटीशन डालोगे। एट प्रेजेंट वी आर डूइंग अबाउट सुप्रीम कोर्ट कि हाई कोर्ट में जहाँ पे भी हम सेटिस्फाइड नहीं है विद द जजमेंट, वी कैन गो टू द एंड मेक एन अपील इन द सुप्रीम कोर्ट। Second, in case of civil cases of the High Court, if the High Court certifies, वो certificate दे दे that the case involves important question of interpreting the law, that is something related to law, and that the case holds general importance, and it's necessary that Supreme Court decides that then an appeal can be made in the Supreme Court. अगर High Court ये कह दे, certificate दे दे, written में ये दे दे कि भाई ये case जो मैं handle कर रहे हैं हम लोग, इट रिलेट्स टू द लॉ रिलेटेड ऑफ द कंट्री, एंड यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी आगे कि भाई क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, देन एन अपील कैन बी मेड इन द सुप्रीम कोर्ट। जजमेंट ऑफ एनी सिविल केसेस इन्वॉल्विंग अ सम ऑफ रुपीज़ 1 लाख और मोर कैन बी चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट। अगर बहुत बड़ा कोई सिविल केस है रिलेटेड टू मोर देन 1 लाख रुपीज़, देन यू कैन गो एंड चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट। इन केस ऑफ क्रिमिनल केसेस व्हेन लोअर कोर्ट हैज एक्विटेड द क्रिमिनल from capital punishment, and in that case high court has given capital punishment to the criminal. Acquitted मतलब कि अगर कोई क्रिमिनल केस में लोअर कोर्ट ने कह दिया कि भाई कैपिटल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसी केस में हाई कोर्ट अगर कोई कैपिटल पनिशमेंट दे दे टू द क्रिमिनल, देन इन दैट सर्कमस्टेंस अपील कैन बी मेड इन द सुप्रीम कोर्ट। मतलब लोअर कोर्ट ने कह दिया कि भाई नो मनी पनिशमेंट, नो कैपिटल पनिशमेंट, हाई कोर्ट कहे भाई कैपिटल पनिशमेंट, इतने पैसे देने हैं, हर्जाना भरना है, तो यू कैन गो एंड मेक एन अपील इन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पूरा जजमेंट रिव्यू करेगी। इट कैन ऑल्सो ट्रांसफर द केस दैट आर गोइंग ऑन इन अदर कोर्ट्स टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि कोई भी दूसरे कोर्ट में अगर केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का ध्यान हर एक केस पे है कंट्री में कि कौन से कोर्ट में कौन सा केस चल रहा है, उसे नॉलेज रहता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसे लगे कि पर्टिकुलर कोर्ट में चलता हुआ केस मुझे लड़ना है, तो ट्रांसफ़र करवा सकते हैं अपने कोर्ट में, एंड सुप्रीम कोर्ट जज कैन इटसेल्फ कैन फाइट दैट केस। द पार्लियामेंट कैन इंक्रीज द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट बाय फ्रेमिंग एक्ट, और सुप्रीम कोर्ट के पावर पार्लियामेंट बढ़ा सकती है बाय पासिंग एन एक्ट। फिर है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, राइट, तो दो तो हमने किए। अब सुप्रीम कोर्ट का थर्ड है एडवाइजरी, कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि प्रेसिडेंट फॉलो करे उससे, नॉट कंपलसरी। इफ द प्रेसिडेंट फील दैट एनी पर्टिकुलर मैटर और क्वेश्चन होल्ड्स इंपॉर्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पब्लिक वेलफेयर, अगर कंट्री की वेलफेयर रिलेटेड, प्रोटेक्शन रिलेटेड कोई क्वेश्चन रेज हो जाए और प्रेसिडेंट को लगे कि भाई मुझे कुछ सजेशन चाहिए, इट कैन टेक सजेशन, दैट इज काउंसिल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, बाय सेंडिंग द मैटर और क्वेश्चन टू सुप्रीम कोर्ट फॉर कंसिडरेशन। सुप्रीम कोर्ट को वो मैटर भेज देंगे कि आप थोड़ा कंसिडर कर लो, रिवाइज इट, टेल मी व्हाट आई शुड डू और व्हाट आई कैन डू अंडर दिस सिचुएशन टू प्रोटेक्ट माई पीपल्स वेलफेयर। अंडर दिस प्रोविजन प्रेसिडेंट कैन अवेल काउंसिल फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। ऐसी कंडीशन में प्रेसिडेंट सजेशन ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का इन द क्वेश्चन रिलेटेड टू लॉ, रियलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन और रिलेटेड टू एनी बिल। बट इफ सुप्रीम कोर्ट फाइंड्स इट अननेसेसरी टू कंसिडर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लगे कि ना भाई मुझे ये मैटर हैंडल नहीं करना है, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट कोई जवाब नहीं देगा टू प्रेसिडेंट। और इफ इट फाइंड्स इट अननेसेसरी टू गिव ओपिनियन ऑन द सेंड मैटर, इट कैन सेंड इट बैक टू द प्रेसिडेंट। वो कहेंगे ठीक है ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये मैटर, तो वापस रिटर्न कर सकते हैं टू द प्रेसिडेंट दैट वी विल नॉट गिव अ ओपिनियन, इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इज नॉट नेसेसरी, and it is not compulsory for the president to follow if any advice or counsel is given by supreme court। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने हैंडल कर लिया वो केस
और उसने कोई एडवाइस या सजेशन दिया टू द प्रेसिडेंट, तो ज़रूरी नहीं कि प्रेसिडेंट भी सुने उसे, इट इज़ नॉट कंपल्सरी. अदर पावर क्या है सुप्रीम कोर्ट के? इट हैज़ अ पावर टू रिव्यू हिज ओन जजमेंट और डिसीजन. खुद के दिए जजमेंट को भी वो फिर से रिव्यू कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट कैन पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. कोई कोर्ट में बिहेवियर ना करे ठीक से, इंसल्ट करे कोर्ट का, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए भी सुप्रीम कोर्ट उस पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग को पनिश कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट हैज़ अ पावर टू नलीफाई एनी स्टेप. नलीफाई मतलब 0 कर सकती है किसी स्टेप को. किसी लॉ को भी वो नलीफाई कर सकते हैं, और लॉ टेकन बाय द एग्जीक्यूटिव इफ इट वायलेट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन. कोई भी लॉ ऐसा बना इन द पार्लियामेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रेक कर रहा हो, जो हमारे कंट्री के लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक कर रहा हो, तो उस लॉ को सुप्रीम कोर्ट कैंसिल कर सकती है, वो पास नहीं होगा कंट्री में. दिस राइट हैज़ बीन गिवन टू द प्रेसिडेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द प्रोविजन ऑफ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. सुप्रीम कोर्ट इज दस द गार्डियन एंड सेवियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन. तो सबसे ऊपर है एपेक्स कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, जो हर एक इंडियन सिटीजन को प्रोटेक्ट कर रहा है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी प्रोटेक्ट कर रहा है. राइट? सो ahead we do from here in our next lecture. So till then revise, and if any doubt give me a call, and keep on revising, keep on reading the textual part, learn the question answers of the textbook at least perfectly and objective from your notes, and textual reading will help you a lot. तो अगर कोई डाउट है प्लीज़ कॉल मी. थैंक यू सो मच and thank you for your support. Thank you once again.